students. I'm Ishika Nayak. I'm a student at IIM Indore. Last 30 days of CAT are very crucial. And if you're thinking कि self-study से हो जाएगा, तो it doesn't work that way. I remember when I was at Presto Solutions, मैं CAT के एक दिन पहले तक भी कोचिंग आती थी because mocks, analysis and a good performance review is very, very necessary. And ऐसे सेल्फ स्टडी से वो उतना कवर अप नहीं हो पाता. इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट 30 डे प्लान्स, सो आरसीज 2 डेली, एलआरडीआई के 2 सेट डेली, 50 क्वांट्स के क्वेश्चन मिक्स्ड डेली, साथ में मॉक्स को कंटिन्यू रखना है. बट द लास्ट वीक ऑफ कैट आपको मॉक्स सारे स्किप करने हैं. Skip all this, just light revision and focus on analyzing previous year question papers. That's all. It will make a huge difference and it's going to be fine. All the very best. Hello everyone, this is Vishakha Parani from IIM Shillong, an alumna of Presto Solutions CAT 2023 batch. 2 years back, I still remember this phase, 30 days to CAT, that mix of anxiety, excitement and endless thought loop. Am I doing it enough? Trust me, I have been there. But here's the truth. From now onwards, every mock will count. Everything you revise will matter. Every hour you invest will bring you closer to your IIM dream. You don't need perfection right now. What you need is consistency. Don't lose on mocks if you don't score well. Try to analyze them and bounce back stronger. Try to visit faculties and gather most of the feedback they can give, because feedback is the thing that matters most to your success. Also, from now on, classes will mostly be taken by Amit sir. So try not to miss even a single class or not even a single part of class, because that's what mattered to me during my CAT. For my anxiety and everything, it was too hectic, but it was meant to be hectic. Also, these 30 days are not just 30 days to your exam. These are the 30 days of your career breakthrough. Keep showing up, keep giving your best, and try to make out of your comfort zone whatever you can make it. All the best, future CAT aspirants. Hey Prestorians, I am Gaurav Kumar Jaiswal, currently in my first year at TSHRM and LR. And I am proud to say that I was on the other side last year. So CAT is just around the corner. सिर्फ 30 दिन बचे हैं. I know the pressure must be building up, but trust me, these last 30 days can actually make a huge difference if you use them smartly and efficiently. So I am here to share some few things that really helped me during my own preparation journey at Presto that I think that you may resonate with. Tip number 1 would be, अभी के टाइम पे कुछ नया स्टार्ट मत करो. Just revise and brush up the topics you have already studied. Strengthen your basics. I mean, this is the time to make them rock solid. The second tip would be, give 2 mocks every week, but don't just take them for the sake of giving it. After every mock, you need to analyze them deeply, sectional wise and topic wise. देखो that where you are lacking and कहाँ पे improvement की ज़रूरत है. You will start noticing patterns very soon. Maybe you are strong in RCs but losing marks in geometry, and the other way around. So that's where you should focus your energy for now. My third tip would be that rigor बढ़ाओ, but stress मत लो. टेंशन लेना बंद करो. कंसिस्टेंसी इज द की. इवन ऑन द डेज यू डोंट फील लाइक स्टडिंग, शो अप, डू समथिंग स्मॉल. दैट्स हाउ यू बिल्ड मोमेंटम एंड कॉन्फिडेंस ऑल्सो. सो टिप नंबर 4 वुड बी, इफ यू एवर गेट स्टक, रीच आउट टू योर मेंटर्स और peers at Presto. You're not alone in this journey, and most importantly, don't get demotivated by fluctuating mock scores. It's completely normal. सबके साथ होता है. And CAT is not just about knowledge. It's also about handling pressure. And believe me that you will master only through mocks. So focus your energy on that. And finally, stay positive, take care of your health and follow a proper routine. Don't mess up your sleep schedule now. The goal is to feel fresh, focused and confident on the exam day so that you can give your best. So give your best, trust your preparation, and remember, it's not just about hard work, it's about smart consistency. All the best Prestorians, you have got everything it takes. Just believe in yourself and हाँ, थोड़ा स्माइल करते रहो. कैट से बड़ा कोई एग्जाम नहीं होता, लेकिन कैट के बाद भी लाइफ होती है. थैंक यू. Hello Prestomates, this is Tanisha Chaudhary from UBS Chandigarh batch of 2027. I am here to give you 30-day strategy for your CAT 2025 which personally worked out for me. I know आप लोग बहुत टेंशन में होंगे क्योंकि बहुत पास में है CAT और बहुत टेंशन होती है इस वक्त. I can relate, I can totally relate. I know मॉक्स अच्छे नहीं जा रहे होंगे, बहुत लो फील कर रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स दिमाग में होंगे. I know, again I can relate.
बट द फर्स्ट स्ट्रेटजी इज़ कि आपको मॉक्स देने हैं और उनको एनालाइज भी करना है। मॉक्स देना सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती है, उनको एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। आप देखो आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, उसे सुधारो अगले मॉक में, और देखो व्हाट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, विच टॉपिक्स आर वर्किंग आउट फॉर यू, एंड देन फोकस ऑन दोज टॉपिक्स। डोंट रन बिहाइंड कवरिंग ऑल द सिलेबस, क्योंकि आप वो नहीं कर सकते, सिलेबस बहुत सारा है, आप वो कवर कभी भी नहीं कर पाओगे। आप अपने टॉपिक्स डिसाइड कर लो दैट यू हैव टू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स एंड कवर दोज बहुत अच्छे से, बहुत डीपली, ताकि उन टॉपिक्स का अगर सिलेबस आ जाए या उस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यू कैन डू इट एंड यू शुड नो दैट। ऑल्सो दूसरी बात है, आपके फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, आप उनके पास कभी भी डाउट्स लेके जाओ, वो आपको हमेशा डाउट सॉल्व करके देंगे। आप उनको रात में भी अपना डाउट मैसेज करोगे तो आपसे ज़्यादा उन्हें ध्यान रहेगा आपके डाउट का, और वो मेक श्योर करेंगे कि आपको अपना डाउट क्लियर करके दें। तीसरी बात है, प्लीज़ डोंट मिस आउट अमित सर्स रिवीजन क्लासेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। दे आर समथिंग दैट हेल्प मी अ लॉट। वो बहुत अच्छा रिवीजन करवाते हैं और वो आपका बेस्ट सोर्स ऑफ रिवीजन हो सकता है। आप कहीं भी चले जाओ, आपको वो रिवीजन वैसा नहीं मिलेगा जैसा अमित सर करवाएंगे। उन्हें बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और उन्हें पता है कैसा पेपर आता है, तो प्लीज़ ट्रस्ट अमित सर। एंड लास्ट एंड द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज़ PYQs बहुत अच्छे से सॉल्व करना। आपके PYQs आप इतनी बार सॉल्व कर चुके होने चाहिए कि आपको PYQs का पैटर्न पूरा पता होना चाहिए, बिकॉज देयर आर समटाइम्स व्हेन द पेपर इज रिवॉल्व फ्रॉम PYQs ही घूम के बहुत तरीके से आ जाते हैं। और इतनी हाइट पे भी अपना प्रिपेयर मत कर लेना कि आप बेसिक चीज़ें ना कर पाओ वहाँ पे, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें करके चले जाते हैं, लेकिन जब पेपर बहुत बेसिक आ जाता है तब हम वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं। सो वो मिस्टेक मत करना, अपने बेसिक्स और एडवांस दोनों स्ट्रॉन्ग रखना और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को पता रखना। डू इट योर बेस्ट। आई नो आप लोग टेंशन में हो। ऑल द बेस्ट। आई एम वेटिंग फॉर सीइंग सम ऑफ माई प्रेस्टोमेट्स इन UBS चंडीगढ़। Thank you. Hello CAT aspirants, this is Navya and currently I'm at Great Lakes. I joined Presto in May 2024 and I was there for like 7-8 months over there. So I'm sure you guys have prepared a lot and I'm sure this is the peak time for you. I would just say one thing, that confidence is very important for this exam. Like, trust me on that. A positive mindset is very important, especially on the D-Day. Don't go with that attitude that I don't know. Go with that attitude that I know it all and I'm the best and I can do it. That attitude really helps, like really helps. So just make sure this 1 month you're very confident, you're very positive, and you have a right attitude for the exam, right? So for the last 1 month prep, I will just go subject by subject. So for LRDI, for what I did is I practiced 2 sets daily so that, you know, I can just train my brain on the daily purpose and, you know, yeah. So for that, I did like 2 sets per day. For verbal, what I did is I focused on my strengths, like what I like it. I like to solve the jumbled paragraphs. That was my strength point. So I focused on that. And again, at the same time, I did 2 paragraphs or 1 paragraph per day so that I don't lose the practice out of it. For cons, what I did is I did multiple revisions, like, multiple times I revised algebra, I revised arithmetic, I revised numbers. Like every week I used to revise the whole quant syllabus so that I am in the loop of every subject, I'm in the loop of every topic that's covered. So I think that is all, and I'm sure Amit sir and his team and every faculty over there is helping you. And don't miss out the classes. I think classes, the revision classes is all. I mean, those classes really helped me a lot, and it really got me covered a lot of topics which I was not sure I was confident in. So don't miss the classes, and I'm sure Presto is helping you all. And if you have anything, just approach to the professors. They're like very approachable people, and yes, so yeah, all the very best, and I'm sure you're gonna do great. Hello Prestorians, कैसे हो? I am Ansh Ajmera, currently pursuing MBA in International Business from IIFT Delhi. So nearly 30 days are left in your CAT 25 attempt, and this is the last phase which is going on. इस फेज़ में काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि पता नहीं हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है लाइक मॉक में स्कोर कंसिस्टेंट नहीं है, बहुत वेरिएशन आ रही है, या मॉक में स्कोर बहुत ही कम आ रहा है, क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस हुए जो एकदम ही बाउंसर चले गए, या बुकलेट के कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ लग रहे हैं. तो ये सब प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है. आपको ट्राई करना है कि आप कैसे चैलेंजेस को ओवरकम करते हो. लाइक अगर मैं मेरे एग्जांपल दूँ तो जो मेरा वीक सेक्शन था उसमें ऐसा भी हुआ है कि मेरे सिंगल डिजिट में नंबर आए हैं,
और ओवरऑल मॉक में भी कई बार मेरे बहुत ही कम नंबर आए। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, कभी भी मॉक के स्कोर से खुद के पोटेंशियल को जज मत करना कि अरे ये तो क्या ही हो गया मेरे साथ, ये इतने कम कैसे आ गए। ठीक है, मॉक का एनालिसिस करो, तीनों सेक्शंस को अच्छे से देखो, कहाँ गलती हो रही है, किन टॉपिक्स में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, फिर उन टॉपिक्स के इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दो। अपने मॉक के स्कोर को अपने दोस्तों के मॉक के स्कोर से कंपेयर नहीं करना है। हमेशा कंपटीशन करना है तो खुद से करो कि पहले से कितना इम्प्रूवमेंट आया है। जो सेकंड पार्ट है लाइक रिवीजन वाला, उसमें आप ट्राई करो कि रिवीजन अच्छे से हो। लाइक जो मैंने स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, अगर मैं क्वांट सेक्शन की बात करूं तो मैं वीक में एटलीस्ट 2 टाइम्स सारे फॉर्मूलेज और कंसेप्ट्स का रिवीजन करता था। आपको क्वांट्स में टॉप 500 बुकलेट मिली है, उससे सॉल्व करो। प्लस क्वांट्स में एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच ये होता है कि कई क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ करने से सॉल्व होते हैं। तो आप ट्राई करो कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसको उस एंगल से भी देखो। आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलेगी तीनों सेक्शंस की, उन शीट्स को काफ़ी सीरियसली लेना है, वो हेल्प करती है इम्प्रूवमेंट में। प्लस PYQs पे अच्छे से ध्यान देना है। मेरे अटेम्प्ट में भी ऐसा हुआ है कि एज इट इज़ PYQ आ गए, और PYQ से आपको पैटर्न भी पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ रहे हैं। अगर LRDI की बात करूं तो LRDI में ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वालिटी सेट सॉल्व करो। DILR में ट्राई करो, और सिर्फ DILR नहीं, क्वांट्स में भी ट्राई करो कि आप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नहीं कि आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करे जा रहे हो। अभी आपको आपका एम ये होना चाहिए कि आप अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व करो, और वो भी थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में। DILR में ट्राई करो कि ज़्यादा वैरायटी आपको मिले। आपको जो मॉक्स मिले हैं उनमें भी जो DILR के क्वेश्चंस हैं उनमें अच्छी वैरायटी होती है, तो उन पर ध्यान दो। एग्ज़ाम के बाद, आपके मॉक के बाद देखो कि वो सेट कैसे सॉल्व हुआ है, उसमें क्या कंसेप्ट लगा है। प्लस आपको टॉप 50 बुकलेट मिली है LR में और DI में, तो आपको उसे सॉल्व करना है। जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो देखना है। PYQ अच्छे से करके जाना है, PYQ इम्पॉर्टेंट होते हैं। VARC सेक्शन में आपको ट्राई करो कि आप ज़्यादा पैसेजेस सॉल्व करो। लाइक मैं जो स्ट्रेटजी यूज़ करता था वो ऐसा था कि मैं कोचिंग आने के पहले ही एटलीस्ट 4 RCs सॉल्व करता था प्रॉपर एनालिसिस के साथ। तो आप ट्राई करो कि आप डेली RC सॉल्व करो। प्लस जो आपकी क्लासेस होती है, स्पेशली जो मैराथन क्लासेस होती है, वो आपको स्किप नहीं करनी है। वो मैराथन क्लासेस काफ़ी यूज़फुल होती है। वो एक अपॉर्चुनिटी है कंसेप्ट्स को रिवाइज करने की, बेसिक से एडवांस तक। तो आपका जो मैराथन क्लासेस है उसे अटेंड करना है बिल्कुल सीरियसनेस के साथ। VARC सेक्शन में आपको सेक्शनल्स भी दिए हैं, सेक्शनल्स अटेम्प्ट करो। जो मॉक्स है उसमें हो सकता है आपने एक्चुअल पेपर में सिर्फ 2 आप पैसेजेस अटेम्प्ट किए या 3 पैसेजेस अटेम्प्ट किए, या हो सकता है 1 भी किया हो। तो एग्ज़ाम के बाद देखो कि कौन सा आपने पैसेज छोड़े हैं, उन्हें खुद से सॉल्व करो। VA और RC दोनों पे अच्छे से ध्यान देना है। VA पार्ट भी स्कोरिंग होता है, पैरा जंबल्स हो, पैरा समरी हो, तो इन पे भी ध्यान रखना है। प्लस आपको एक पैसेजेस की बुकलेट दी है, वो बुकलेट सॉल्व करनी है। आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, वो अच्छे से सॉल्व करना है। बाकी इस टाइम पे पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो। आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही चल रही है, और इनफैक्ट मुझे भी बहुत सेल्फ डाउट था इस टाइम पे कि पता नहीं मेरा क्या होगा, लेकिन फाइनली एक अच्छा कॉलेज कन्वर्ट हुआ। क्योंकि आप अभी जिस फेज़ में हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंट आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, आप क्वालिटी मॉक्स दे रहे हो, अच्छे स्टडी मटेरियल यूज़ कर रहे हो, तो इन सब का बेनिफिट आपको मिलेगा। आपका एम होना चाहिए कि आपको D-Day पर अच्छा परफॉर्म करना है। अगर आपने अच्छा एफर्ट पुट किया है तो D-Day आपका अच्छा ही होगा। पॉजिटिव रहो, इस फेस को कामली हैंडल करो। सारी चीज़ सही चल रही है, आगे भी सही ही होगी। तो इस मोटिवेशन के साथ हार्ड वर्क करते रहो। आपको कोचिंग पे जो भी गाइडेंस मिल रही है उसे अच्छे से फॉलो करनी है। सर को, मैम को काफ़ी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज़ करो। और बस
बढ़िया से प्रेप करो, सब सही होगा। रिलैक्स कामली इस सिचुएशन को, इस फेस को निकालना है, बाकी सब सही।